And we are live. Assalamu alaikum everyone. This is Safa Ishtiyaq on ACS TV Online. We have Ahmed as a co-host, and we have Jatin as our guest. Assalamu alaikum Jatin, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रमजान बहुत अच्छे जा रहे हैं. What about you? How's their weather and how's things are going there at the moment? माशाल्लाह से बहुत सारी चीजें सही जा रही हैं। एक्चुअली आई एम आउट ऑफ कराची सिंस 2.5 months। मेरा एक Okay. छोटा सा गांव है, मैं 2.5 महीने से वहीं पे ही रह रहा हूँ। Okay. तो एवरीथिंग इज फाइन एंड बहुत अच्छा जा रहा है। पर दिस कोरोना, अल्लाह सबको सेहतयाब रखे और सबको इससे आमीन बचाए और आमीन जल्दी या जल्दी इसको रिमूव करे। बाबरकत का महीना है, सबकी दुआएं लगेंगी इसमें। बेशक बट बेशक बेशक. बस उस वजह से परेशान है। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर गुड, एवरीथिंग इज ऑन रूटीन। बिजनेस भी चल रहा है, सोशल लाइफ भी चल रही है। माशाल्लाह से शुक्र है मालिक का। So, Justin, can you give us your short, brief, quick introduction so everyone could know that who are you, and we can have this Yeah, one-on-one interactive session then. I may introduce myself. My name is Jatin Kevlani, and I am also a thalassemia patient, and my MashaAllah. age is much higher rather than I look. I look very Yeah. young, but I'm older than you guys. I think so. My I'm also running my organization, Thalassemians Hmm. Welfare Organization, and also Okay. I'm also director of my company, KK Group of Zabardast. Companies. And Zabardast. mashallah, we are third largest rice exporter company from Pakistan. Okay. And and also running my organization since 2009 when I was just 19 years old. I started my Wow. organization. That's So that's a huge success, it right? yeah, mashallah. It was my dream to run an organization for needy thalassemia patients, Mm-hmm. thalassemia fellows, whom I look every day like they are very in worries because their parents that doesn't earn much and they are worried regarding their medicine, their blood transfusions, and there are lots of issues in that. So Hmm. God bless me a lot, and I think that I thought, and it was my dream that I will serve them Survive same this. serve. Hmm. Yeah, I will survive, and I will also serve the thalassemia children. Hmm. So Yeah, इसमें so that difficulties was my आपको क्या dream will आती हैं come true. regarding looking very young? That's also a plus point though. और क्या difficulties Mhm. हैं that you bear it in this situation? थैल थैलेसीमिया में या इस कोरोना की सिचुएशन की बात कर रही हैं आप? Thalassemia में. थैलेसीमिया में वैसे कोई मुश्किलात तो नहीं है, बट हम्म. सिर्फ ये होता है कि आपको थैलेसीमिया के बारे में मैं बता दूं थोड़ा, जो भी Okay. आपके लाइव ऑडियंस हैं। थैलेसीमिया हम्म. बेसिकली इट्स नॉट अ डेडली डिजीज। Okay. थैलेसीमिया बेसिकली क्या होता है, आपको अपने माँ बाप से ये ट्रांसफर होती है डिजीज। Inherit होता है. जब Okay. आपके माँ या इनहेरिटेड डिजीज है, जब आपके माँ बाप थैलेसीमिया माइनर होते हैं, देन इट्स 25% चांस कि आपके थैलेसीमिया मेजर का बच्चा हो। जैसे कि मैं थैलेसीमिया हम्म. मेजर हूँ। इसमें Okay. कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट इनिशियली आपको हर मंथ क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। किसी को Okay. 2 वीक्स में होती है, किसी को 3 वीक्स Okay. में, किसी को 4 वीक्स में, डिपेंड ऑन योर बॉडी। All तो right. उस हिसाब से आपको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। तो Okay. ऐसी कोई मुश्किल आती है, पर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उसके साथ आयरन आपके बॉडी में एंटर हो हम्म. जाती है। तो हम्म. वो एक्सेस आयरन रिमूव करने के लिए आपको इंजेक्शंस हैं, कुछ ओरल टैबलेट्स हैं, वो आपको लेनी पड़ती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और हर कोई Okay. अफोर्ड नहीं कर सकता है। सही क्योंकि सही सही. थैलेसीमिया जो डिजीज है, तो वो हम्म. कंडीशन है, बेसिकली ये डिजीज नहीं है। काफी Okay. Okay. लो इनकम फैमिलीज में ज्यादा होती है, क्योंकि वो कजन्स मैरिज ज्यादा करते हैं। Yeah, yeah. So current cousin marriages are there, the fact, you know. मेन Okay, मेन कॉज कजन्स मैरिजेस का है। जी। okay. So what about your own business during this COVID and how your business either it did got affected or did not? बिजनेस ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक 25% इफेक्टेड हुआ है। Okay, अदरवाइज वी आर एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस। एंड आपको पता है okay, कि वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट बिजनेसेस होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है okay. रिगार्डिंग इकोनॉमी इकोनॉमी Hmm, सपोर्ट के लिए, आपके hmm, फॉरेन रेमिटेंस के लिए।
तो हम्म वी आर वेरी गुड नाउअडेज बिकॉज डिस्टरबेंस हुई है लेबर की वजह से और आपका हम्म स्टाफ की वजह से, बट ओवरऑल वी आर वेरी गुड। हमारा स्टाफ हमारे साथ बहुत सपोर्टिव है, तो हम्म माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बहुत सही चल रहा है। सही सही सही। So, जी जी। Ahmed had some few of the questions. Over to you, Ahmed. You can ask on your way. जी जतिन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहमद भाई। मेरा पहला सवाल का तो आपने जवाब दे ही दिया। मेरा पहला सवाल यही हम्म, था कि आप रिगार्ड थैलेसीमिया के हवाले से ही और यूथ पार्लियामेंट का भी आप हेल्थ के हवाले से हिस्सा रहे। तो बिल्कुल। मुझे यही पूछना था कि आपने स्पेसिफिक यही फील्ड चूज़ क्यों करी? हालांकि बहुत से थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जो कि सिर्फ इस बीमारी के लिए लड़ते ही रहते हैं, सोशल वर्क की तरफ आना नहीं चाहते। तो ऐसी क्या Hmm. मोटिवेशन रही आपको कि आप आए, बीमारी से भी लड़ी और इन लोगों के लिए भी लड़ी जिन लोगों को ये बीमारी है? सही है यार, देखो जब मैं छोटा था अराउंड, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ इसमें आने के लिए। मैं जी, जी। Hmm. अराउंड 7-8 ईयर्स था तब, मैं गांव में रहता था। तो मुझे पापा कराची से आते थे, मेरे पापा कराची में बिजनेस करते थे, कराची से आते थे मुझे लेके, कराची आते थे वापस गांव से, और मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे फातिमा फाउंडेशन में। और Hmm. फातिमा फाउंडेशन इज बेसिकली एनजीओ जिसको Hmm. जो हमारे वेल सेटल फैमिलीज है उनको डोनेट करती हैं, गवर्नमेंट डोनेट करती है। तो उससे वो बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूशन, आयरन चिलेटर्स वगैरह देते जी। हैं। तो मैं जब Hmm. वहाँ जाता था तो देखता था यार यहाँ पे कैसे कैसे बच्चे आते हैं जो कि बहुत Hmm. परेशान होते हैं। ऐसी ऐसी फैमिलीज होती थी जो कि उनके पास, यानी जब वो उस दिन आते थे उस दिन खाना नहीं खाते थे उसके पेरेंट्स। मैंने ऐसी Hmm. फैमिलीज अपने आंखों से देखी थी। तो मैं Okay. छोटा था पर मैंने अपने ज़हन में डाल दिया था कि अल्लाह ताला ने जब भी मुझे दिया, उस वक्त मैं भी इतना वेल सेटल नहीं था, इतनी इनकम नहीं थी हमारी, जो यानी Hmm. आता था खाते थे, यानी अच्छे थे, बस Hmm. ये कि किसी को डोनेट नहीं कर सकते थे। तो मैंने एक विश कर दी थी खुदा से कि अगर मुझे आपने किसी भी वक्त कुछ भी दिया, देन आई विल हेल्प दिस गाइस, दिस चिल्ड्रन, दिस Hmm. पेशेंट्स। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मेरी जो ख्वाब था मेरा पूरा किया। तो मैंने कहा अब मेरा जो ड्रीम है वो मेरा पूरा हो गया, तो इसलिए So मैंने how did थैलेसीमिया का you? किया। अच्छा अच्छा. और मैं थैलेसीमिया का खुद पेशेंट हूँ, तो मैंने कहा जितना Hmm. मैं मेरे में दर्द है इतना कोई Hmm. और नहीं समझ सकेगा इनको। Hmm. तो तो माशाल्लाह से इस मैंने एक बच्ची विजन से की स्टार्ट वजह की से, थी। या आप इस एक विजन ही था ना आपका बचपन से कि आपने जब भी आपने अर्निंग स्टार्ट किया, जब भी आप कुछ बनेंगे, सो यू विल बी स्टार्ट गिविंग इट टू बैक टू द सोसाइटी। तो तभी यू फेल हम्म, इन दिस बिजनेस। सो व्हाई दिस बिजनेस दैट यू डूइंग दीस डेज, ये एक्सपोर्ट वाला बिजनेस क्यों है? व्हाई डिफरेंट बिजनेस क्यों कोई नहीं? actually my father was in rice business since ओके 25 ओके 30 when he started rice trading, and then he came ओके. to rice export। तो इसलिए मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, नाइस, सही. या तो मेरी तो फर्स्ट सैलरी जो मुझे पापा ने दी थी इट वाज 10,000। सो ओह! फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड टू डोनेट 80% ऑफ माय सैलरी। जबरदस्त जबरदस्त. तो जतिन, आप अपने एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ थोड़ा बताएँ हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह आप एक्सपोर्ट करते हैं, या राइस का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? बेसिकली राइस का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो समझो, राइस हमारे पास इंटीरियर एरिया से आता है, जो मिलर्स होते हैं, पेडी होती है, जो बी सीड होता है राइस का, उसमें से वो राइस को निकालते हैं। उसके बाद वो राइस हमारे पास आता है रो रो फॉर्मेट में। फिर उसको जी। हम पॉलिश वगैरह करके डिफरेंट एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स की पैकिंग करते हैं, और वाया शिप हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट की टीम होती है, इसमें मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैं अपनी कंपनी में राइस मार्केटिंग करता हूँ, इंटरनेशनल राइस में खुद जाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेल करने, एग्जीबिशंस में करता हूँ, जर्मनी में, हम्म पेरिस में, दुबई में, बहुत सारी कंट्रीज में। तो उसमें जाके हम राइस सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम्म. आके फिर हम वो एक्सपोर्ट्स करते हैं वाया सी शिपमेंट्स होती हैं। तो इसलिए हम ये राइस इस तरह होता है एक्सपोर्ट। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर राइस का कोई स्कोप है? वैसे तो 25% ऑफ द राइस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है खाली अफ्रीका और केनिया के लिए। तो हम्म दूसरे ममालिक में हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कीनिया की करेंसी इतनी बहुत नहीं है। तो हमारा हम्म. 25% सारी सिर्फ कीनिया और अफ्रीका वगैरह के अंदर हमारा राइस जाता है। तो दूसरे ममालिक के अंदर हम क्यों नहीं भेज रहे जहाँ पे करेंसी
बहुत हाई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? देखो राइस हम लोग, देखो अफ्रीका हमारा एक बहुत बड़ा, समझो एक वन ऑफ बिगेस्ट बायर है जी। पाकिस्तानी राइस ओके। का। और अच्छा। पाकिस्तानी राइस जो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो होता है एरी 6, जो कि नॉन बासमती 86। राइस है, जो जी। कि ओके। पाकिस्तान में खाया खाया नहीं जाता इतना, बहुत ही हम्म। कम हम्म। मिकदार में फीड जो होती हैं उसमें जाता है। उसके बाद जो हम्म। हमारे पास सरप्लस का उसका क्रॉप है, तो वो हमें हम्म। एक्सपोर्ट करना होता है। वो ज्यादातर चाइनीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत यूज होता है, तो इसलिए वो हमारे मेन बायर है, चाइना एंड अफ्रीका। अफ्रीका में आप ईस्ट अफ्रीका ले लो, वेस्ट अफ्रीका ले लो, दे आर बिगेस्ट बायर फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद हमारा जो बासमती है वो हमारा मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है, यूरोप में जाता है, अमेरिका जाता है। जी दैट्स जतिन, नाइस। तो एज कम्पेयर टू 86 के मुकाबले में बासमती की पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन कम है। डिमांड भी कम है आई एरी, गेस, है ना? हाँ बिल्कुल, प्रोडक्शन तो बहुत है पर डिमांड कम है एरी 6 डिमांड की, कम है, क्योंकि सो डिमांड दैट्स कम है। व्हाई हाँ वी एक्सपोर्ट इट लोकल टू द अदर कंट्रीज। वी एक्सपोर्ट, या एग्जैक्टली। जतिन, एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या? रिक्वायरमेंट जी। रिक्वायरमेंट्स किस किस पर्पस के लिए, आप मुझे थोड़ा बताएं इंग्लिश में तो। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है एक्सपोर्ट के लिए? क्या लीगल क्या अगर कंडीशंस, राइस के, टर्म्स एंड कंडीशन? जी। अच्छा राइस के बारे में जैसे आप अगर आओ तो राइस में बेसिकली आपको एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी है, आपको हम्म। फेडरेशन में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कस्टम्स हम्म। में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद आपकी कंपनी का लाइसेंस, आपको राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर रजिस्टर होना पड़ता है एज अ एक्सपोर्टिंग कंपनी। उसके हम्म। बाद आप राइस एज आप कोई चीज एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को बताते हो कि वी वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग, वो आप सारा उसको सारी चीजें इन्फॉर्म करते हो, तब आपको अप्रूवल आती है, तब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी बनने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी वेल ट्रेंड एक आपके पास टीम हो, प्रोडक्शन की साइड पे भी, आपकी मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में भी, देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। एंड हम्म। मार्केटिंग, मेन रोल तो मार्केटिंग का होता है। मार्केटिंग so का, जी। during this COVID-19 lockdown situation, how the business of rice export has got affected? हुआ है, बाहर एक्चुअली गए हैं राइस या नहीं गए, या यहीं पे हैं? अगर यहीं पे हैं तो वो आप उनको कम प्राइस में आप सेल आउट कर रहे हैं, या व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ इट? नहीं, राइस राइस जो है वो एक्सपोर्ट तो हो रहा है, ओके। बिकॉज मैंने आपको बताया कि एरी 6 जो है वो हम यहाँ पे पाकिस्तान में रख नहीं सकते, क्योंकि ओके। उसकी कोई यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, एंड डिमांड ही इट्स अ नहीं है। हम्म। मेन वो मेन रीजन है हमारे फॉरेन रेमिटेंस का, जो कि हमें अभी कंट्री में शदीद जरूरत है फॉरेन रेमिटेंस हम्म। की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो हम्म। एरी 6 जो है एक राइस राइस भी एक मेन रोल प्ले करते हैं राइस एक्सपोर्टर इकोनॉमी में। तो वो ओके। ओके। हम एक्सपोर्ट तो हमारी हो रही है एंड गवर्नमेंट इज हम्म। सपोर्टिंग अस, तो हमारी एक्सपोर्ट तो एज यूजुअल हो रही है। बट वही मैंने आपको बताया कि लेबर कम होने की वजह से एंड कुछ हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्टेज की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो कभी कभार इश्यूज आते हैं, बट ओवरऑल 75% इट्स गुड। Hmm. So social work, talking about social work during this lockdown and Ramadan, आपने वो एक्टिविटीज क्या शुरू की हैं? सोशल, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमने बेसिकली राशन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था। जो ओके। जो ऐसी फैमिलीज हैं और जो डेली वेजेस पे काम करने वाले थे, और कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे बिल्कुल ही आउट ऑफ सिटी एरियाज थे, कुछ लोग सिटीज से गांवों से आते हैं, विलेजेस से आते हैं सिटीज में काम करने के लिए, तो वो हम्म। विलेजेस में वहीं पे लॉकडाउन रह गए, तो उनको हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की फ्रॉम वेरी सही सही वेरी सही। लाइक वेरी फर्स्ट वीक से। उसके सही बाद सही हमें सही। अभी रमजान में हम लोग वापस राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सोच रहे हैं। बाकी जो हम्म। थैलेसीमिया के लिए हम लोग पेशेंट्स को जो मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, वो उनको हम्म। मंथली बेसिस पे जाती हैं कंटिन्यूस। एक बच्चा जब हमारे पास हम्म। रजिस्टर हो जाता है तो उसको हम्म। एवरी मंथ कंटिन्यूस मेडिसिन जाती हैं, फिर भले कर्फ्यू लग जाए या लॉकडाउन हो जाए, वी हैव टू अच्छा। सेंड वी हैव टू सेंड द मेडिसिन। तो हमारी हम्म। टीम माशाल्लाह से वो उनको विदाउट एनी डिस्टरबेंस उनके पास मेडिसिन पहुंच रही हैं।
थ्रू कोरियर पहुंच रही हैं या कोई और बंदा लेके वहां पे उनके घर पे दे के आता है। तो जबरदस्त। वो चीजें माशाल्लाह से रब पाक की हमारे ऊपर एक मेहरबानी है कि वो चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है रुकी ये हैं। एक बहुत बड़ी, एग्जैक्टली है, बहुत बड़ी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अभी तक हमारी कोई चीज रुकी ही नहीं है। तो हम्म। जतिन, आप अपनी थैलेसीमियंस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ बताएंगे कि जो लोग आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं या आपकी थैलेसीमिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे किसी भी तरह का फ़ायदा उठा उठा सकते हैं, और कहाँ-कहाँ आपकी थैले फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? बिल्कुल, थैलेसीमियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताऊं, थैलेसीमियंस का कोई भी आपको कहीं पे बोर्ड नहीं दिखेगा कि हाँ, थैलेसीमियंस ऐसा ही है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो पब्लिसिटी, क्योंकि जी। मेरा एक विश था कि कहीं पे भी मेरा नाम ना आए और हम्म। मेरा कहीं बोर्ड लगा हुआ ना हो, कहीं पब्लिसिटी नहीं हो। और वेरी फर्स्ट डे मैंने ये एम किया था कि किसी से डोनेशंस नहीं लेनी है। ओनली हम्म। ओनली एक या दो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे एक दो बच्चे स्पॉन्सर करते हैं, अदरवाइज हम्म। ऑल चिल्ड्रंस आर स्पॉन्सर्ड बाय मी एंड माय कंपनी। और तो फिर आप बेसिकली मेरा लोगों को इन ऑफिस वहीं, बच्चों के बारे में पता कैसे चलता है, एंड हाउ डू यू गेट मोर आउट ऑफ जैसे लोगों हमने एक से बच्चे को शुरू, ज्यादा लोग तक फिर आप जी कैसे पहुंच सकते हैं? मैं बताता हूँ। एक तो सोशल मीडिया पे हमारी चीजें शेयर होती हैं कभी कभार, ओके। और एक माउथ टू माउथ शेयरिंग होती है। जैसे मैंने किसी एक बच्चे को दवाई दी तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता होगा जो एनजीओ होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री में करती होगी। तो वहां पे हम्म। बच्चा, जब वहां पे उनकी कम्युनिटी के लोग आते हैं या उसी लेवल के लोग आते हैं, तो वो उनको बताते होंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है और हम्म। ये लोग हैं, ये दवाइयाँ देते हैं। तो इस तरह हम्म। लोग हमारे पास पहुंचते हैं। ओके, मतलब रेफरल तो से, वो वर्ड ऑफ माउथ से, रेफरल विदाउट से, एनी वर्ड मार्केटिंग। ऑफ माउथ, विदाउट सही एनी सही। मार्केटिंग, वो हमारे पास हम्म। पहुंचते हैं। और उसके बाद हम उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट, उनकी थैलेसीमिया टेस्ट, डॉक्टर की कंसल्टेशन, उनकी प्रेस्क्रिप्शन होती है, और आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है वहां से रिकमेंडेशन होती है। तो ये सारी तो चीजें लेके फिर हमारी टीम इन्वेस्टिगेट करती है कि वेदर वो नीडी है या ऐसे ही हम्म हमसे ले रहा है। तो तो जो फिर हम ब्लड जब है वो प्रॉपर, ब्लड बैंक में इतना ऑलरेडी होता है कि वो उनको उस वक्त ट्रांसफर हो सके या डिलीवर हो सके, और डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं लोगों के एज पर, सम बी पॉजिटिव, तो क्योंकि वो उस वक्त मैनेज करना फ्रेश ब्लड जी मुश्किल नहीं होता समटाइम्स? क्योंकि ब्लड बेसिकली हमारी कोई ब्लड बैंक नहीं है। तो हम ओके। लोग बेसिकली कुछ ब्लड बैंक्स हैं जो एनजीओज हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उनसे हम लोगों की एफिलिएशन है। तो हम ओके। लोग जो ओके। भी डोनेशन आती हैं वो हम उनके अकाउंट में देते हैं। फिर हमारे पास ओके। कोई ऐसा बच्चा आता है जिसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रही होती है, तो हम उसको वहाँ हम्म। पर रिफर कर देते हैं और उनकी वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाती है। हम लोग बेसिकली मेडिसिन सब प्रोवाइड करते हैं फ्री में। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त। ओके, अच्छा फ्री ऑफ तो कॉस्ट, जतिन, अब अच्छा। कोविड-19 के अंदर जैसे ही ये स्टार्ट हुआ था तो हमें कुछ न्यूज़ आई थी कि थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं उनको ब्लड की बहुत कमी हो गई, क्योंकि लोग बाहर आना ही लोगों ने छोड़ दिया था, तो उस दौरान ब्लड की सर्कुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा रुक गई थी। बिल्कुल तो उसमें क्या-क्या बिल्कुल। आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिली थी और अभी तक करने को मिल रही हैं या नहीं? एक्चुअली कराची में और जो बड़े बड़े शहर थे उसमें ब्लड की जो डोनेशन थी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन हो गया था, लोगों में खौफ था कोरोना का बहुत खौफ ज्यादा था। ना। जो मीडिया हम्म। चैनल्स इधर उधर से सुन सुन के देख देख के लोगों में खौफ शुरू हो गया था, तो लोग एग्जैक्टली है। ये ये समझ रहे थे कि अगर हम ब्लड डोनेट करने गए तो हमें ना कोरोना हो जाए। ऐसा ही और है। एग्जैक्टली है। ऐसा बेसिकली कुछ नहीं था। फिर कुछ सोशल वर्कर्स आए, कुछ लोगों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस चलाना शुरू किए, वीडियोस चलाई कि आप थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड डोनेट करें क्योंकि इससे आपको कोरोना नहीं होगी, और प्रॉपर सेफ्टी हम्म। मेजर्स। और लोगों ने घर घर में जाके लोगों से ब्लड डोनेट करवाया है। जैसे अगर कोई डोनेट जबरदस्त। जी। करना चाहता है तो उसके घर में जाके ब्लड डोनेशन ली है उसके घर में सेफ्टी के साथ। जबरदस्त। तो माशाल्लाह से अभी कराची और इंटीरियर सिंध में तो थोड़ी बहुत अभी भी शॉर्टेज है, पर जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहाँ पे काफी लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और अभी माशाल्लाह सिचुएशन इन कंट्रोल है, पर फिर भी ब्लड तो हर वक्त चाहिए होता है ना। जी, ऐसा ही जी। एक है या। वक्त में हर बच्चे को, एक वक्त में एक ऑर्गेनाइजेशन में 200 150 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है। तो हम्म। ब्लड तो चाहिए होता है हर किसी को। तो तो जो वो मेडिसिन आप लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट चाहिए करते होता है। हैं, तो जो मेडिसिन आप लोग हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोकली मिल जाते हैं, या यू हैव टू एक्सपोर्ट देम एज वेल, या दे आर सम काइंड ऑफ स्पेशल मेडिसिन, एंड डज एवरी पेशेंट हैज टू टेक दैट सेम मेडिसिन, या हर एक पेशेंट की अलग मेडिसिन होती हैं? बेसिकली ये कुछ स्पेशल मेडिसिन है, आयरन चिलेटर, इसमें दो तीन मेडिसिन आती हैं, कुछ ओरल हैं और कुछ इंजेक्शन हैं।
ओके। तो एक दो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में सप्लाई करती हैं, तो हम लोग हम्म। बेसिकली उनसे डायरेक्ट लेते हैं और फिर वो हम हम्म। पेशेंट्स को सप्लाई करते हैं। सही सही सही। तो ये सिचुएशन है आजकल कोरोना वायरस में। बाकी सप्लाई मेडिसिन की थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि जब हम्म। वो मेडिसिन इम्पोर्टेड है, जब कंपनियां इम्पोर्ट ही नहीं कर रही तो वो शॉर्टेज हम्म। आई हुई है थोड़ी। एक मेडिसिन में अभी शॉर्टेज आई हुई है पाकिस्तान में। ओके। इंशाल्लाह वो जल्दी एज सुन एज पॉसिबल रिकवर हो जाए, वो शॉर्टेज पूरी हो जाए और इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। आपका काम इसी तरह जारी रहे, और वो लोगों तक, वो जो ज़रूरतमंद है उनको ये मेडिसिन एज सुन एज पॉसिबल मिलती रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद यही है इंशाल्लाह। अच्छा जतिन, आप बैलेंस कैसे करते हैं अपनी लाइफ को? जैसे एक्सपोर्ट भी है, फिर लोकल बिजनेस भी है, फिर सोशल वर्क भी आपका है। मैं बैलेंस कैसे करता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं जब सुबह उठता हूँ तो बेसिकली सुबह उठते ही मैं पहले अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ। तो सारी चीजें उसमें प्लान आउट कर देता हूँ कि आज के दिन में सही आज के दिन में मुझे क्या करना है। आजकल वैसे सही। ये ट्रेंड भी चल रहा है कि आप सुबह उठते क्या चेक करते हो। क्या तो चेक मैं एग्जैक्टली सुबह करते या। हैं? जी उठते ही बिल्कुल सोशल एग्जैक्टली। में अप अपना व्हाट्सएप चेक करता हूँ, तो उसमें सारी चीजें देख रहा होता हूँ। और मेरी टीम मुझे वो सारा वो गाइड कर रही होती है कि क्या क्या चीजें आज रह गई हैं, तो उस हिसाब से मैं अपनी सारी चीजें प्लान करता हूँ। जिन जिन से मीटिंग करनी होती है सुबह के टाइम में मीटिंग हो जाती है मेरी, जिन सोशल वर्क के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन और मेरी ऑफिस, एक्सपोर्ट की ऑफिस एक ही है। ओके तो मुझे ओके अच्छा। एक ही ऑफिस में मेरे जिसको मिलना होता है तो वहीं पे मैं उनको बुला लेता हूँ। जिनको मेडिसिन लेनी होती है तो वहीं से ही मेरी मेडिसिन चली जाती है। और उसके बाद शाम को जैसे 4 या 3 4 बज के किसी के पास जाना है, विजिट करना है किसी पेशेंट को, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो वो विजिट कर लेता हूँ शाम में अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद रात में मैं फैमिली के साथ। सही 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 जबरदस्त। और 3 काम ये, चौथी मेरी शादी भी हुई हुई है, तो वो भी मेरी माशाल्लाह। फैमिली है। नो। सही माशाल्लाह सही। माशाल्लाह, वो सबसे बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पास माशाल्लाह से। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। तो वो मेरी वाइफ भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है इस काम में, मुझे माशाल्लाह, अच्छा हेल्प अच्छा। कराती है। और काफी सारी चीजें मेरी वो भी मैनेज कर रही होती है साथ साथ में, कि ये आपको ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना है, यानी एज अ लाइफ पार्टनर जो होता है। तो इस होम तरह मुझे मिनिस्टर। बहुत सपोर्टिव है। होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर बेसिकली। सही हो हाँ गया। बेसिकली होम तो मिनिस्टर है। जी जी। तो जतिन, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे राइस एक्सपोर्टर्स हैं या किसी भी हवाले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो उनको हम्म। लोकल मार्केट में ज़्यादा कन्वीनियंसी है या इनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने में ज़्यादा कन्वीनियंसी है, या जैसे एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा कन्वीनियंट है वो? जी हमारे काफी ऐसे एक्सपोर्टर हैं जो लोकल एंड एक्सपोर्ट दोनों काम करते हैं। बेसिकली लोकल में हमारे पास ये होता है कि बासमती राइस की ज्यादा डिमांड होती है, तो उनके अपने ब्रांड्स बने हुए हैं बासमती राइस में। और नॉन बासमती है वो तो हमें एक्सपोर्ट ही करना है, वो यहाँ पे लोकल में नहीं चलता है इतना। तो बेसिकली यही है कि आप अगर दोनों काम करना चाहें तो दोनों की एक बराबरी है। एक्सपोर्ट में क्या है, गवर्नमेंट को फायदा है, आपकी इकोनॉमी बूस्ट हम्म। होती है, आपको फॉरेन रेमिटेंस आता है, तो वो एक आपके मुल्क के लिए अच्छा है। आपकी जो चीज़ें सरप्लस हैं आप एक्सपोर्ट करो, आप फॉरेन रेमिटेंस आ जाएंगे। और जो चीज़ें आपके हम्म। लोकल में हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने मुल्क में अच्छी चीज़ दे रहे हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हम्म। अच्छा, फ्यूचर ऑफ राइस इंटरनेशनल मार्केट, और पाकिस्तान में तो खैर हमारी अपनी प्रोडक्शन है, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है राइस का? या जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि चाहते हैं कि हम्म। आपसे गाइडेंस लें कि राइस के बिजनेस में अगर वो एंटरप्रेन्योर बने या वो एक्सपोर्ट करें, तो क्या उनके लिए आपके आपके हिसाब से आपकी राय होगी? राइस देखो, अगर आपको किसी चीज़ में एक्सपोर्ट करनी है तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप एक एक्सपोर्टिंग फर्म बना रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट उसमें हम्म। फ्यूचर अगर आप बताएं तो, क्योंकि आजकल की कोई भी मार्केट ले लो, आप राइस ले लो, चाहे आप प्लास्टिक ले लो, चाहे लेदर ले लो, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। आप हम्म। ऐसा ही उसमें है, ऐसा ही कुछ है। कुछ 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 भी नहीं कह सकते हो। जैसे आप अभी कोरोना का देख लो, हम्म। कौन सी चीजें, काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बिलीव भी नहीं करते हो, वो कहाँ जीरो से हीरो बन गए। और ऐसा ही कुछ है, चीजें ऐसी बेशक हैं हाँ। हीरो से जीरो बन गई। तो ऐसा ही है। आजकल की मार्केट्स में यू कैन नॉट रिलाई एनीथिंग, और आप किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मेरा खुद का ओपिनियन ये है, मैं किसी चीज में प्रेडिक्शन अभी
2-3 साल से किसी में प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि क्या होगा। जो चल ऐसा रहा ही है है। करंट सिचुएशन पे आप देखो, करंट सिचुएशन पे आपको कैसे चलना है, यहाँ पे आपको कैसे सरवाइव हम्म करना है, तो उस पे ही ज्यादा चलना चाहिए आजकल की सिचुएशन के हिसाब से। Sahi. So we have just got last 5 minutes in which you can just simply आप एक youth को या upcoming हमारे generation है जो कुछ करना चाहते हैं, जो घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, they want to become as we were talking about from zero to hero. हम्म तो आप उनको एक one last हम्म message क्या देना चाहेंगे that what they should do and how they should take it this lockdown as an opportunity. क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसको एज हमारे ऊपर अजाब आया हुआ है, हमारे ऊपर नेगेटिव स्पीच एंड कंट्रोवर्सीज भी काफी आ रही हैं, बट टू जस्ट हम्म। स्टे पॉजिटिव एंड टू जस्ट फाइंड आउट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको क्या लगता है कि एक बेस्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी यूथ को? अपनी हमारी यूथ को मैं बेसिकली मैसेज एक ही देना चाहूंगा कि ये जो एक सिचुएशन सारी दुनिया के ऊपर आई हुई है, एग्जैक्टली उसमें से जीतेगा वही जिसके पास माइंड है। और एक ये है कि आप इस टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग 5G के एग्जैक्टली ऊपर जा रहे हैं, तो या आप उसमें से कितना फायदा उठा सकते हो। देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें इंडस्ट्रीज लगा के दे दी, हमें सारी चीजें बना के दे दी। नाउ वी आर हेयर कि हम इसमें क्या एडिशन ला सकते हैं, वैल्यू एडिशन क्या ला सकते हैं। अगर हम चावल को ही वही पॉलिश करके एक्सपोर्ट करते रहे, वो तो हमारे पेरेंट्स भी कर रहे थे जो नॉन टेक्नोलॉजी दौर से आए हैं। हम लोग इतनी हाई टेक्नोलॉजी में हैं, हम कहीं पे एग्जैक्टली भी या बैठ के एक दूसरे की वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते थे अपने दौर में। तो अब एग्जैक्टली या उसमें से फायदा उठाएं कि इस एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी से हम कैसे खेल सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। तो पूरी यूथ को यही है कि आप कोई भी बिजनेस करो, आप कोई भी जॉब करो, आप अपनी टेक्नोलॉजी आपके सामने है जो आपका अवेलेबल है, आप उसमें जाके देखो कि आप इससे क्या फायदा उठा सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप उस टेक्नोलॉजी से कैसा फायदा उठाना चाहते हो। और सही आजकल सही आगे चल के आगे फ्यूचर पूरा टेक्नोलॉजी का है। एवरीथिंग एवरीथिंग एग्जैक्टली विल या बी टेक्नोलॉजी, गैजेट्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी। ये मेन वर्क सारा खत्म हो जाएगा आगे चल के। एग्जैक्टली बहुत या कम। आप चाइना जाओ, जैसे हम लोग राइस फैक्ट्रीज घूमने जाते हैं, आप थाईलैंड चले जाओ, चाइना चले जाओ, और जो भी हमारे कंपटीटर हैं उनकी राइस फैक्ट्रीज फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज है। वो सिर्फ एक बंदा जी वहां ऐसा पे ही है। चावल डालता है और पैक होके उनको बैग मिलता है। और जबरदस्त हमारे यहाँ अभी भी मैनुअली जूते सिस्टम है। मैनुअल है। मैन मिलिंग सिस्टम है। तो हम लोग यंगस्टर जो आए हैं, ये हम लोगों को वैल्यू एडिशन लानी चाहिए हम्म कि कैसे कैसे चलना चाहिए। तो हमारी यूथ को, मेरी यूथ को यही मैसेज है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और उससे जितना जबरदस्त, फायदा उठा सकते हैं आप फायदा उठाएं। ठीक हो गया, जतिन, जबरदस्त। तो सोशल वर्क के हवाले से आपकी क्या यूथ को मोटिवेशन रहेगी? जैसे मैंने आपका एक सेंटेंस पढ़ा था, आपने कहा था कि कोई भी जो है ना वो अपने दिल से ना हारे, वरना वो बीमारी से पहले ही हार जाएगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट आप क्या एग्जैक्टली क्या ये बिल्कुल मोटिवेशन सही बात देंगे? है। क्या मोटिवेशन मोटिव मेरा ये मैसेज में ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है वैसे। देखो अगर मुझे काफी लोगों ने मेरी जिंदगी में, आई एम 29 years old, मेरी जिंदगी माशाल्लाह। में मुझे काफी ऐसे लोगों ने बोला था, मेरे पेरेंट्स को बोला था जब मैं 10 साल का था, जब मेरे पेरेंट्स गए थे डॉक्टर के पास हम्म कंसल्टेशन के लिए, जाते थे 15-20 दिन में। तो उस डॉक्टर ने, गांव के डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा आपका 12 साल तक जिएगा, उसके बाद इसकी लाइफ नहीं अल्लाह है। रहम। तो तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था, मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रहा है। एंड हम्म दे उस डॉक्टर की वजह से मेरी स्टडीज मेरी लेफ्ट हुई। मैं हम्म आई वॉज द ब्रिलियंट चाइल्ड इन माई स्कूल। तो मेरी हम्म स्टडी लेफ्ट हुई इस डॉक्टर की वजह से। पर बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मुझे सपोर्टिव पेरेंट्स मिले और माशाल्लाह से उसके बाद मुझे सपोर्टिव वाइफ मिली। तो मैंने जबरदस्त, कभी भी इट्स अ हिम्मत नहीं आ रही। ब्लेसिंग। और आप बिलीव करेंगे, मैंने आफ्टर 6 years, मैंने आप उससे पहले 10 साल मैंने, आई वॉज ऑलरेडी 15 years जब मैंने बिजनेस ज्वाइन हम्म किया पापा का। और माशाल्लाह 19 माशाल्लाह। years में मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद जबरदस्त। मैंने स्टडीज की है वापस, 20 years के बाद मैंने स्टडीज स्टार्ट की अपनी वापस। वाह। आई 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 मैं प्राइवेट स्टडीज कर रहा था, मेरे हम्म टीचर मेरे ऑफिस में मुझे पढ़ाने आते थे। और मेरे जबरदस्त। कोलीग्स और मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरे से पूछते थे, सर आप तो कितने पढ़े हुए, आप हम आपके एम्प्लॉयज हैं और आप अभी पढ़ रहे हो। मैंने कहा पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, और ऐसा ही अगर है। आपकी हिम्मत हो तो आप 99 years में भी आप डिग्री ले सकते हो। ऐसा ही तो है, फिर उसके लर्निंग बाद हैज मैंने नो अपनी एज। स्टडीज एग्जैक्टली। स्टडीज पास की, और 2 साल पहले मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की।
और उसके ओके, बाद जबरदस्त। उस तो यही मेरी यूथ को और सबको मैसेज है कि आप हर चीज अपनी कंटिन्यू हम्म। कर सकते हो, आप किसी की भी बातों में ना हो। काफी लोग दुनिया में ऐसे सही आएंगे हाँ, जो सही है। जो आपको गिराने डिमोटिवेट की करेंगे। कोशिश करेंगे, और लोग डिमोटिवेट। करते हैं, काफी सौ, एग्जैक्टली है। हाँ, 100 में से 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको इनकरेज करेंगे कि इनकरेज नहीं, यू करेंगे। कैन हम्म। फाइट, यू कैन फाइट, आप यू आर हम्म। टाइगर, आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने ऐसे काफी सारे लोगों से बातें सुनी। मेरे काफी ऐसे रिलेटिव है, मुझे बोल के जाते थे यार तुम बीमार हो, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो। मैं कहा आई एम नॉट, हम्म। मैं एक बीमार इंसान नहीं हूँ। मुझे सिर्फ यू आर ब्लड अ लगता फाइटर। है और हम्म। वो मेरी पावर है। और मैं जबरदस्त। काफी ऐसे ऐसे यानी मैं एक तकबर से तोबा है, काफी ऐसे लोग हैं जो आज वो काम नहीं कर सके जो आज मैं कर रहा हूँ। जबरदस्त। नहीं, तो दैट्स योर अगर लाइफ आप, is a self जी, motivation story for everyone. You're a survivor, you're a fighter, and thank you so much, Jatin, for giving us थैंक यू। us time. And I hope you're blessed with more and more. और आप इसी तरह लोगों की थैंक यू। हेल्प करते रहें. Thank you so much, थैंक यू। Ahmed, for having him on थैंक यू। board. And good luck, everyone. Stay home, stay safe. Watch his थैंक video while sitting at your home. बाहर मत निकलें. And thank you so much again, Jatin. Thank you. थैंक यू सफ़ा, थैंक यू अहमद, थैंक यू। Allah Hafiz. हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।